Hello everyone and welcome back to my another video. In today's video, we are going to do class 11th. The chapter name is Structural Organization in Animals, and we are going to do chapter number 7 from it. First of all, you must know that what is a tissue. In all multicellular organisms, या फिर animals, the body is formed of several kind of cells, and these group of cells which perform similar functions and are in are of same shape are called as tissues. Here is the proper definition which you have to write in your exams point of view, that a tissue may be defined as a group of one or more types of physically linked cells having a similar origin. They are originated from a same thing, specialized for a specific function, जो कि एक ही फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है कि वो वही फंक्शन कर सकते हैं, along with intercellular material, if any. Means this is an exception, but what all you have to write is that a group of cells that has similar origin and are specialized for a specific function is called as tissue. Now these specialized cells, they have told that there are 200 different types of specialized cells in a human body. Then proceeding further, the microscopic study of tissues and organs in relation to their function. If we are talking about their function, then it is called as histology. And this term was coined by Mayer. This you don't have to learn. And histology is also called as microscopic anatomy or microanatomy. A person who specializes in science of histology is called histologist. This you don't have to study from the exam point of view, but you must have knowledge about each and everything. That's why I'm telling you. Next thing, the most animals have around them a narrow space that contains extracellular fluid. Means this is a cell in the animals, and the fluid which is around this cell, which is surrounding the cell, will be called as extracellular fluid. This fluid will be called as extracellular fluid. And intercellular fluid will be the fluid which is the same. Extracellular fluid is also called as intercellular fluid. Inter means outside, and if it is said intracellular, intra means inside the cell. And if inter is there, then outside the cell, or extra is there, then it is also outside the cell. Now, the origin of tissues, from where the tissues are originated. First of all, let me clear all these things. Tissues arise from undifferentiated cells of primary germ layers, ectoderm, mesoderm, and endoderm in the embryo through a twin process of cell multiplication by mitosis and cell differentiation by inactive or specific genes. जो हमारे टिश्यूज हैं वो तीन प्राइमरी जर्म लेयर से अराइज करते हैं, ectoderm, mesoderm, and endoderm, and in the embryo itself, where twin process occurs. दो प्रोसेस से ये जनरेट होते हैं. First process is multiplication by the mitosis, and second is cell differentiation.
by inactivation of specific genes. सेल का डिफरेंशिएशन होना मीन्स सेल का ब्रेक होना, सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं. Now the types of tissue. We have four types of tissue: epithelial, muscular, connective and nervous tissue. अब इन सब का हम origin भी देख लेते हैं. एपिथेलियल तीनों डर्म से originate होता है. Muscular tissue mesoderm, connective tissue is also mesoderm, nervous tissue ectoderm, and epithelial from all the three: ectoderm, mesoderm and endoderm. यहाँ पे इनके मेन फंक्शंस भी लिखे हुए हैं which you have to learn. This is very important table which one should learn. Proceeding further, the epithelial tissues are epithelia. Talking about the first one, epithelial tissues. So the word epithelium was introduced by the scientist. इनके बारे में दिया भी हुआ है यहाँ पे 6 number point पे. If you want, then you can read it. It was applied originally to the thin skin covering. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे थिन स्किन कवरिंग होती है वहां पे इन्होंने इसको देखा था इन साइंटिस्ट ने. एपिथेलियल टिश्यू को जब इन्होंने डिस्कवर करा था. अपॉन द स्किन, थैली मीन्स skin, skin covering. So upon the skin covering we find epithelial tissues. Now if you are asked to write the definition, then we have to define it as: an epithelium is a tissue composed of one or more layers of cells covering the external surface of the body. As I have said, ये हमारी body के सारे external surface को cover करती है. The skin is covered by epithelial tissue. The internal organs also it covers. The outer covering I am talking about, the lining in the cavities of the body, and again the internal organs is written over here. The hollow cavities which are present in the body, like the buccal cavity which is on mouth, is also covered by epithelial tissue. If we are talking about its origin, then I have told you it is uh, originated from all the three germ layers. If we are talking about its structure, so here is a we can find the structure of epithelial tissues. Suppose these are two cells, together it is epithelial tissue. So in between of the epithelial tissue, there is that external fluid which we have recently talked about. Then there is cell coating which they have shown like this one part. Then the lateral cell membrane of adjacent cells, ये दो cells की cell membrane दिखाई गई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज. Then there's a basal cell membrane present over here which is holding both the tissues or the cells, I would say. Behind basal membrane, there is basal lamina and fibrous lamina. These both are the parts of basement membrane. Now the functions of epithelium.
It covers the surface and line the cavities. Cavities means hollow space. Therefore, they are sometimes called as surface tissues. Just remember that epithelial tissues are also called as surface tissues. They protect the underlying or overlaying tissues from mechanical injury, drying up, entry of the germs, and harmful chemicals. यहाँ पे एंट्री ऑफ द जर्म से मतलब है ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, उसकी एंट्री नहीं होने देता है बॉडी में, बिकॉज यही सबसे बाहर प्रेजेंट होता है. मैकेनिकल इंजरी इस वजह से बोला गया है कि अगर हमें कहीं पे कट लग जाता है सो ये अपने आप ही उसको रिकवर कर देता है, वापस ज्वाइन कर जाता है. अब ये भी हमें तीन तरीके से मिलता है. एक तो होता है माइक्रोविला, एक होता है स्टीरियोसीलिया और एक होता है सीलिया. This is not a part of our NCERT, so I'm going to avoid this. But if you want, then you can, of course, study it. Then we are given numerous functions of epithelial tissue, but the main features were already studied, so you can read it from here. And the main functions were already told to you. Now coming to the types of epithelium tissues. So we have simple and compound epithelium tissues. Simple epithelium is divided as squamous, cuboidal, columnar, ciliated and pseudostratified. Ciliated में हमारी दो चीज आती हैं, एक तो क्यूबॉइडल और एक कॉलमनार, और pseudostratified में भी हमारी कॉलमनार और ciliated आते हैं. मतलब जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है इन्हीं पे ही सीलिया होता है, वो भी हम आगे देखेंगे. कंपाउंड में हम आए तो हम देखते हैं एक तो स्ट्रैटिफाइड और एक ट्रांजिशनल. स्ट्रैटिफाइड में अगेन स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड कॉलमनार सिलिएटेड. यहाँ पे क्यूबॉइडल सिलिएटेड नहीं दिया हुआ है, और स्क्वैमस भी यहाँ पे दो तरीके का होता है, केरेटनाइज्ड एंड नॉन केरेटनाइज्ड. चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. Coming to the location of simple squamous epithelium, it lines the Bowman's capsule of urinary tubules या फिर जो PCD या DCD होती हैं उनके कुछ पार्ट्स में हम कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स, और द एल्विलाई ऑफ लंग्स. PCD DCD अभी आगे भी आएगा, यहाँ पे एक बहुत छोटा रोल है पीसीडी डीसीटी में, बट जो भी आगे हम पढ़ेंगे पीसीडी डीसीटी वहां पे दूसरे टाइप का एपिथेलियम हमें मेन फीचर में दिखेगा. यहाँ पे सिर्फ ये बोमेंस कैप्सूल और एल्वुलाई ऑफ लंग्स में हमें याद रखना है. यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर फंक्शन फ्रॉम हियर. देन कमिंग टू क्यूबॉइडल epithelium, it is cuboidal in shape as you can see from here. और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? salivary and pancreatic ducts, sweat, salivary, thyroid glands जहाँ पे secretion का काम करते हैं, proximal parts of urinary tubules यहीं पर ही आता है हमारा proximal में P C T, proximal convoluted tubule. यहाँ पे इसके इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं, और अगर इस तरीके से हो तो वो सीलिया होता है. फंक्शंस अगेन यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके. कॉलमनार जो कॉलम जैसी शेप के हों, इसमें न्यूक्लियस जो है वो स्लाइटली बॉटम की तरफ प्रेजेंट होता है.
माइक्रोविला अगेन आई हैव टोल्ड यू इस तरीके के होते हैं, और सिलिएटेड हो तो वो इस तरीके से होते हैं। ये सारी लेबलिंग्स आपको लर्न नहीं करनी है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, gastric glands, intestinal glands, pancreatic lobes। इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्स जो होती है उनमें प्रेजेंट होता है और सेक्रेटरी रोल प्ले करता है। म्यूकस भी ये सेक्रीट करता है जो कि एक फाइन कोटिंग बनाती है एपिथेलियम पे। एंड ये सारी चीजें ही आपको इसमें लर्न करनी है। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में जितना दिया है हमें उतना ही फॉलो करना है। फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। अब आते हैं सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें दो चीजें होती है, एक तो क्यूबॉइडल और एक कॉल्यूमिनार सिलेटेड। क्यूबॉइडल जो क्यूब लाइक हो और उस पे सीलिया हो इस तरीके से, इसकी न्यूक्लियस। और कॉल्यूमिनार जो क्यूब लाइक हो, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस जो है वो बॉटम पे हो और ऊपर सीलिया लगा हुआ हो। तो इसमें बस यही है कि इसके जो ऊपर की साइड है वहां पे सीलिया लगा हुआ होता है, और ये कुछ कुछ किडनी के पार्ट्स में हमें फाइंड होता है। और ये किस में हेल्प करता है? यूरिन के मूव करने में। इस तरीके से कॉल्यूमिनार है, ये कहाँ पाया जाता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ओविडक्ट, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और इसका फंक्शन है म्यूकस का मूवमेंट, यूरिन, एग्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सब का मूवमेंट। आते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड पे। ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये मीन्स एक जगह शॉर्ट सेल, एक जगह लॉन्ग सेल। शॉर्ट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लॉन्ग में नीचे होता है। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कॉल्यूमिनार और सिलिएटेड। कॉल्यूमिनार के फॉर्म में कॉलमनर सेल्स विदाउट सीलिया भी होते हैं और विद सीलिया भी होते हैं इस तरीके से। फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ सेक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, यूरिन, सेमेन इन यूरेथ्रा एंड म्यूकस लोडेड विद डस्ट पार्टिकल्स की ये मूवमेंट करवाता है। सो दीज वर ऑल द फंक्शंस ऑफ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। यहाँ पे हम इनकी फिगर्स भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम पे। ए कंसिस्ट करता है फी ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, मीन्स ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा जहाँ पे ये कई सारे सेल्स को एक ही साथ लिए हुए होता है। You found many of the layers of different types of cells like this। मैंने आपको यहाँ पे 3 करके दिखाई है। ऊपर वाली जो है वो दो लाइंस के फॉर्म में है, देन बीच में कुछ स्पाइरल फॉर्म में है, एंड थर्ड नंबर वाली एक साथ क्लोज क्लोज पैक्ड है। सो इस तरीके से ये हमें फॉर्म में मिलता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इस वजह से ही इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड में भी आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अभी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है इसको हम जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस टू फॉर्म न्यू सेल्स। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज जर्मिनेटिव लेयर। ये रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जैसे कि आपको दिखाया गया था पहले, यहाँ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पे लेबलिंग भी है। तो ये डिवाइड करता है टू टाइप्स में, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब जो कि the cells repair the cytoplasm with hard and waterproof protein. वाटरप्रूफ मतलब इस पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि केराटिन हो गया या फिर हॉर्न हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केराटिनाइजेशन या फिर कॉर्निफिकेशन। Layers of flat dead cells are referred to as stratum corneum or horny layer. This you don't have to study even. Non-keratinized पे आते हैं. It lines the buccal cavity, pharynx, esophagus and canal, vagina, lower parts of urethra, जहाँ पे वाटर जा सकता है. ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं. Unable to check loss of water and provides only moderate protection against abrasion, जिसको स्क्रैपिंग बाय फूड भी कहते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, जो कि अब तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, बट स्टिल इफ यू वांट देन यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। आई हैव प्रोवाइडेड इट फॉर यू। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। Stratified cuboidal has outer layer of cuboidal cells. इसकी जो सबसे बाहर वाली, मैंने आपको 3-4 लेयर्स दिखाई थी पहले, एक ऐसे होती है, फिर बीच में स्पाइरल था, फिर नीचे लाइनिंग थी, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अगर ये क्यूबॉइडल हो तो उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, और अगर ऐसे ही अगर ये कॉलमनार हो तो उसे कॉलमनार बोलते हैं, और अगर इसके ऊपर सीलिया भी लगा हुआ हो कुछ इस तरीके से तो उसको सिलिएटेड कॉलमनार कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये लाइन करता है मेमोरी ग्लैंड, डक्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। ये लाइन करता है स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट, लार्ज सेरेब्रली एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स। ये लाइन करता है लैरिंक्स और अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो बस इनकी लोकेशन आपको याद करनी है, बाकी इसमें से ज्यादा आज सच क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पे आते हैं। The transitional epithelium differs from the stratified epithelium in having 3 to 4 layers of the cells. इसमें 3 से 4 लेयर होती हैं सेल्स की। लेस फ्लैटेंड सरफेस सेल्स, इसकी जो सेल्स है वो ज्यादा फ्लैट नहीं होती है, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जो इसकी सबसे नीचे वाली सेल होती है वो ज्यादातर कॉलमनार टाइप होती है, और the surface cells are globular और intervening cells are polygonal, मतलब जो बीच वाली सेल्स हैं वो पॉलीगोनल शेप की होती हैं, while जो सबसे ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो ग्लोबुलर सेल्स होती हैं। ये जो एपिथेलियम है ये सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को या उन्हीं ऑर्गन्स को लाइन करता है जहाँ पे ज्यादातर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, लाइक लंग्स। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेटर्स, रीनल पेल्विस। When these organs expand, the cells of the surface and middle layers are not pulled apart from one another but become broader and thinner. तो यही बताया गया है कि ये जो पार्ट्स है वो एक्सपैंड करते हैं बट वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, वो
ब्रॉडर भी होते हैं और थिन भी होते हैं। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के अंदर चलता रहता है कंटिन्यूसली। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर कॉलमनार लगा हुआ है इसमें, एंड ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का डायग्राम है। ग्लैंड्स पे आते हैं, डेफिनेशन देखें तो अ सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन विच सिक्रीट्स या प्रोड्यूस अ यूजफुल मटेरियल, उसको ही क्या बोलते हैं हम, ग्लैंड। ये एपिथेलियम टिश्यू से राइज होती है। सेक्रीशंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर जिसे सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं वो भी हो सकता है, या फिर तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है जिसे हम मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। अब इसके टाइप्स, इसको काफी तरीके से डिफरेंट कैटेगराइज करा जाता है। पहला बेसिस है इसका कि ये कहाँ पे सेक्रीट कर रहा है अपना सेक्रीशन, द साइट ऑफ सेक्रीशन। तो पहला आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस जहाँ पे सेक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू हो रहा है, डक्ट सीधा उसको साइट ऑफ एक्शन पे लेके जा रही है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल, मैमरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स को लैक करती हैं, वो अपना सेक्रीशन ऐसे ही बॉडी में रिलीज कर देती हैं, जिसको फिर ब्लड टारगेट ऑर्गन पे लेके जाता है। और इसके एग्जांपल होंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल्स, पिट्यूटरी एंड थायमस, जो कि आप अपनी क्लास 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं। क्लास 10th में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, सो आई थिंक आप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसी में ही थर्ड नंबर पे आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज और गोनाड्स। देन ये मीजोक्राइन एंड एपोक्राइन और होलोक्राइन हमको नहीं करना है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे हमको करना है। म्यूकस और सीरियस सेल्स, और यहाँ पे आएगा हमारा ट्यूबुलर सेल्स, जिसमें कि स्वेट ग्लैंड्स आ गए, आर्म पेट्स, स्प्लेनर्स ग्लैंड, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, बट इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। जो हमारा बेसिस था इसको मेनली इसको डिवाइड करने का, वो हमें पूछा जाएगा सिर्फ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड से ही पूछेगा। अब आपके सामने है द चैप्टर का पूरा एक रिव्यू एनिमल टिश्यूज का, जिसमें कि हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। सो इन फ्रंट ऑफ यू इज अ शॉर्ट समरी। अभी एक और पेज पे आपको दिखाया जाएगा, तो ये चीज अभी आपको वीडियो स्टॉप करके पूरी रीड करनी है। इसमें समरअप कर दिया गया है चीजों को, एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है देन कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क दैट थिंग। सो अगले पेज में यहाँ तक आपको पढ़ना है। मस्कुलर टिश्यू हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अभी हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देखेंगे। के सामने कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस दूसरी वाली उसके भी होंगे टॉपिक के, बट जो हमारे टॉपिक है आपको वही वाले क्वेश्चन में से देख लेने हैं। आई एम शोइंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आज बस हम 20 तक क्वेश्चन ही देखेंगे इसमें, बिकॉज फिर आप इतने सारे एक साथ लर्न नहीं कर पाएंगे। अभी हम 20 तक करके इसको वहीं छोड़ देंगे, एंड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर जाएंगे। These are two more questions which I have to practice. Then question number 22, 23 and 24 हमें करना है।
देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। ये वाला आपको करना है, ये वाला करना है, ये वाला आपको क्वेश्चन करना है। अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से करेंगे एंड जिसके आंसर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। ये वीडियो थी यहीं तक, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।